Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class. Dear students, my name is Nazish Noor and I am your Pakistan studies teacher. We have already started chapter number 2 and the name of the chapter is Making of Pakistan and this is part 10. Now come up to page number 14 and this is chapter number 2 Making of Pakistan. We have already studied more than half of the chapter in our previous classes. Today we are going to start the new topic, which is on page number 28, Partition of India and Establishment of Pakistan. Partition कहते हैं अलैदगी, Establishment कहते हैं क़याम. Dear students, the partition of India was the division of British India into two independent dominion states as India and Pakistan. The partition was outlined in the Indian Independence Act 1947 and resulted in the dissolution of the British Raj or Crown result in India. The two self-governing countries of India and Pakistan legally came into existence on 14 and 15 August 1947. Dear students, I am going to read and explain the passage to you. You need to please hold your pencils in your hands and note down the meanings of difficult words. According to the 3rd June plan, the provinces of Punjab and Bengal was decided to be divided. For this purpose, a British lawyer कहते हैं वकील को, Ratcliffe, full name was Cyril John Ratcliffe. Ratcliffe was appointed मुंतखब किया as chairman unanimously means मुत्तफ़िका तौर पर, to demarcate the boundaries. Demarcate कहते हैं हदबंदी को, boundaries कहते हैं हदूद को. 3rd जून प्लान के मुताबिक बंगाल एंड पंजाब के सूबों की तकसीम तय की गई. Dear students, we have already studied about 3rd June plan in part 9. 3rd June plan was Indian Independence Act 1947 in which British government decided to divide Bengal and Punjab provinces according to the Hindu and Muslim majority. इस मकसद के लिए, किस मकसद के लिए? डिवीज़न की बात कर रहे हैं. डिवीज़न की बात कर रहे हैं बंगाल एंड पंजाब की. इस मकसद के लिए ब्रिटिश वकील जिसका पूरा नाम था सिरिल जॉन रैटक्लिफ को हदबंदी के लिए मुत्तफ़िका तौर पर अपॉइंट किया गया. इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट कहते हैं इख्तिलाफ को. लास्ट डिसीजन वाज टू बी गिवन बाय रैटक्लिफ. सेवरल सेशंस कहते हैं मीटिंग्स को of both the groups of boundary commission. यहाँ पर both group यूज़ किया गया है मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के लिए. Boundary commission Bengal and Punjab were held but representatives of the Congress and Muslim League could not agree on any point. Now I am going to explain it in the case of disagreement. इख्तिलाफ की सूरत में आखिरी फैसला रैटक्लिफ यानी कि जो ब्रिटिश वकील थे वो तय करेंगे. हदूद तय करने वाली कमीशन ने दोनों ग्रुप्स यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ काफ़ी मीटिंग्स की इन विच दे वर डिस्कसिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब. लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नुमाइंदे किसी नुक्ते पर राज़ी ना हो सके. Now come to page number 29. On 17th August 1947, Ratcliffe Award was declared ऐलान किया. Award हम कहते हैं to give, to allocate, to grant, which give some Muslim majority areas, for example district Gurdaspur to India. The Ratcliffe Award was the outcome of an official plan announced by
Lord Mountbatten on 3rd June 1947 regarding the partition of India into two separate sovereign states, India and Pakistan. Dear students, अवार्ड का मतलब होता है देना. इसे हम अवार्ड इसलिए कहते हैं कि इस प्लान के मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बंगाल एंड पंजाब की पार्टीशन हुई थी मेजॉरिटीज़ के मुताबिक, यानी कि अगर जिस हिस्से में हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा थी तो वो हिंदूज़ को दिया गया और जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा थी तो वो मुस्लिम्स को दिया गया. तो ये जो अवार्ड वर्ड है इसका मतलब होता है टू गिव, टू एलोकेट, टू ग्रांट, देना, इसलिए ये वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है. रेडक्लिफ अवार्ड का ऐलान हुआ जिसमें मुस्लिम अक्सरियत वाले एरियाज़ जैसे कि गुरदासपुर इंडिया को दिया गया. नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी इन ओनली वन तहसील. तहसील कहते हैं टाउन को. पठानकोट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर. डिस्ट्रिक्ट कहते हैं ज़िला. डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट तहसील यानी कि टाउन से बड़ा होता है. एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे तहसील यानी कि टाउन्स होते हैं. एक ज़िले में काफ़ी ज़्यादा टाउन्स होते हैं. तो गुरदासपुर का जो ज़िला था, पूरा डिस्ट्रिक्ट था, उसके जस्ट एक टाउन में एक तहसील जिसका नेम था पठानकोट, वहाँ पर नॉन मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी, यानी कि बाकी अक्सरियत सारी मुसलमानों की थी. इसके बावजूद गुरदासपुर इंडिया को दिया गया. गुरदासपुर was granted to India because गुरदासपुर जो था वो कमर्शियली बहुत इम्पॉर्टेंट था. कमर्शियली कहते हैं फाइनेंशियली, प्रॉफिट वाइज और ट्रेड वाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. इसलिए यहाँ पर इंडिया को फेवर दिया गया और जो एरियाज़ कमर्शियली और फाइनेंशियली बहुत इम्पॉर्टेंट थे ट्रेड के लिए, वो एरियाज़ इंडिया में शामिल किए गए. In those areas, the headworks of rivers, headworks कहते हैं डाइवर्जन पॉइंट ऑफ वाटर, जहाँ से पानी को डाइवर्ट किया जाता है उसे headworks कहते हैं. headworks of rivers to irrigate पाकिस्तान. irrigate कहते हैं आपाशी करना, मतलब वो डाइवर्जन पॉइंट्स पानी के जहाँ से पाकिस्तान को इरिगेशन सिस्टम या पानी मिल रहा था, वो एरियाज़ भी इंडिया को दिए गए. were given to India. देखें, वो एरियाज़ भी इंडिया को दिए गए. which later on created the canal water dispute. dispute कहते हैं तनाज़ा. कैनाल वाटर इस वक्त ये इंडिकेशन है इंडस बेसिन ट्रीटी के बारे में जो कि बाद में सॉल्व हुआ. ये इंडस बेसिन ट्रीटी वर्ल्ड बैंक ने सॉल्व की थी 1960 में, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पानी के तनाज़े को लेकर मसाइल चल रहे थे, क्योंकि जो हेडवर्क्स थे वो पार्टीशन के टाइम इंडिया को दिए गए. The canal water dispute was named with Indo-Pakistani water dispute of 1948, and Pakistan had a dispute over the sharing of water rights to the Indus River. Likewise, Calcutta, the capital of Bengal, was given to India. कैपिटल कहते हैं दारुल खिलाफा, सेंटर को जहाँ से गवर्नमेंट कंट्रोल होती है, जैसे कि पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है. And demand of Muslim League was to hold referendum in Calcutta. रेफरेंडम कहते हैं डायरेक्ट वोट सिस्टम को. Because Muslim League expected the poor and destitute Hindus will also vote in favor of Pakistan along with Muslim majority. Poor कहते हैं गरीब को, destitute कहते हैं मोहताज. But the British did not agree with this demand of the Muslim League. किस डिमांड की बात कर रहे हैं? रेफरेंडम की बात कर रहे हैं. मुस्लिम लीग चाहता था कि कलकत्ता में रेफरेंडम किया जाए, डायरेक्ट वोट सिस्टम किया जाए, कि कलकत्ता के जो लोग हैं वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, या वो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं. तो इसके लिए मुस्लिम लीग वहाँ पर रेफरेंडम चाहते थे ताकि
वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी राय दें। इस डिमांड को ब्रिटिश ने जो है तो रद्द कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। Thus Calcutta, the place of great economic sources, went to India. इकोनॉमिक कहते हैं मुआशी, सोर्सेस कहते हैं ज़राए या जो ज़रिया होता है जहाँ से आपका फाइनेंस आता है, चाहे वो सोर्स ट्रेड हो यानी तिजारत हो या फिर वो जॉब्स हो, सर्विसेज हो। तो मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि कलकत्ता में रेफरेंडम किया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग की तवक्को थी कि गरीब और मोहताज हिंदू भी मुस्लिम अक्सरियत के साथ पाकिस्तान के फेवर में वोट करेंगे रेफरेंडम के थ्रू। लेकिन ब्रिटिश मुस्लिम लीग की इस डिमांड पर राज़ी ना हुआ। इस तरह कलकत्ता जो कि मुआशी तरक्की का सोर्स था वो इंडिया को दिया गया। If we analyze the ways through which British had parted subcontinent into the favor of Congress, we can come to know that British were giving the favor and privileges to India. As we can see the partition of Gurdaspur and Calcutta. अगर हम देखें कि ब्रिटिश ने रेड क्लिफ के अंडर जो पार्टीशन करवाई थी तो वो सारी की सारी इंडिया के फेवर यानी कि कांग्रेस के फेवर में जा रही थी, जैसे कि गुरदासपुर और कलकत्ता जो कि ग्रेट इकोनॉमिक सोर्सेज थे वो सब इंडिया को दिए गए यानी कि कांग्रेस को दिए गए और पाकिस्तान को उससे महरूम रखा गया। Dear students, now I'm going to read and explain the next paragraph to you. This award shows that some leading government officer played vital role to damage Pakistan and to favor Congress. Vital कहते हैं अहम, favor कहते हैं साथ देना। Award means नवाजना या to assign। ये अवार्ड जाहिर करता है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं ने पाकिस्तान को नुकसान देने और कांग्रेस का साथ देने में अहम किरदार अदा किया। उसमें माउंटबेटन भी थे एंड रेडक्लिफ भी थे जिन्होंने इंडिया को यानी कि कांग्रेस को फेवर दिया। इंस्पाइट कहते हैं बावजूद, इंस्पाइट ऑफ ऑल दीज injustices बेइंसाफियाँ। कायद-ए-आज़म शोड स्टेटमैनशिप कहते हैं सियासी दानिशमंदी को एंड टोल्ड। इन तमाम बेइंसाफियों के बावजूद कायद-ए-आज़म ने सियासी दानिशमंदी दिखाते हुए कहा। Dear students, as you can see, these three lines are enclosed in quotation marks. It means these are the actual words of Qaid-e-Azam on the partition of Pakistan. Based on injustice कहते हैं बेइंसाफी, this award cannot be called constitutional आईनी। This award reflects अक्कासी करना। The bad intentions इरादे। Here political decisions फैसले political सियासी are made instead of constitutional but as a prestigious कहते हैं पुरवकार nation we are bound of this award. So Qaid-e-Azam had given his statement about the partition of Pakistan कि बेइंसाफ़ी पर बने इस अवार्ड को हम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जा सकता, मतलब वो आईनी नहीं है, वो पॉलिटिकल है। Because it was said that the partition of subcontinent would be based on majority and referendum, but later rejected the demand of referendum given by Muslim League. कायद-ए-आज़म अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि ये अवार्ड बुरे इरादों की अक्कासी करता है। किसके बुरे इरादों की बात कर रहे हैं? कांग्रेस और ब्रिटिश के बुरे इरादों की बात कर रहे हैं। यहाँ सियासी डिसीजंस को देखा गया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। सियासी यानी कि पॉलिटिकल डिसीजंस को देखा गया है। इस बात का ये मतलब है कि यहाँ पर सारा फेवर जो है ब्रिटिश ने कांग्रेस को दिया। पार्टीशन के टाइम जितना भी फेवर था, जो इकोनॉमिक प्लेसेस थे, सोर्सेज थे,
जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ थे वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी होने के बावजूद भी वो एरियाज़ कांग्रेस को दिए गए। मतलब कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले एरियाज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्लान के अंडर ये कहा गया था कि वो एरियाज़ मुस्लिम लीग और पाकिस्तान को दिए जाएंगे। तो ये साबित करता है जिस किस्म से ये पार्टीशन हुआ है, पार्टीशन साबित करता है कि ये प्लान कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल होता तो मुस्लिम मेजॉरिटी के एरियाज़ पाकिस्तान में शामिल होते, ना कि वो कांग्रेस को दिए जाते। कायद आज़म अपनी स्टेटमेंट में मज़ीद कहते हैं कि बावकार कौम होने के नाते हम इस अवार्ड के पाबंद हैं। मीन्स के एक प्रॉमिस, हमने जो प्रॉमिस किया है, किस प्रॉमिस की बात कर रहे हैं? वो 3 जून प्लान को एक्सेप्ट करने के प्रॉमिस कर रहे हैं कि उस प्लान को एक्सेप्ट करने के बाद हम बाउंड हो चुके हैं कि हम रेड क्लिफ अवार्ड को भी एक्सेप्ट करें। Although the plan was based on political decisions, not on constitutional. Dear students, now come to the last paragraph of this topic. According to 3rd June 1947 plan, Muslim majority of Eastern Bengal and Western Punjab voted in favor of Pakistan, Constituent Assembly of Sindh, Shahi Jargah of Balochistan, and members of Municipal Committee Quetta and people of KP decided to join Pakistan through referendum. 3 जून 1947 के प्लान के मुताबिक मुस्लिम अक्सरियत ईस्टर्न बंगाल एंड वेस्टर्न पंजाब ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कहते हैं वो असम्बली जो एक मुल्क को आइन देती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन देती है, उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली कहते हैं। सिंध की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली और शाही जरगा जो कि बलूचिस्तान का था और म्यूनसिपल कमेटी ऑफ क्वेटा के जो मेंबर्स थे और केपी के लोगों ने पाकिस्तान के हक में रेफरेंडम के थ्रू वोट दिया। इट मीन्स दैट वेस्टर्न पंजाब, ईस्टर्न बंगाल, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ सिंध, बलूचिस्तान की शाही जरगा और म्यूनसिपल कमेटी ऑफ क्वेटा और केपी के लोगों ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना came to Karachi on 7th August 1947। 7th August 1947 को यानी a week before independence कायद आज़म कराची आए। He was elected as President of Assembly in the session of First Constituent Assembly of Pakistan on 11th August 1947। 11th August 1947 को Constituent Assembly के पहले सेशन में Assembly के President मुंतखब किए गए। After 3 days, Lord Mountbatten addressed कहते हैं खिताब करना द लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं कानून साज असेंबली, यानी लॉ मेकिंग असेंबलीज जो कि मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं। एंड थस पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14th August 1947 एंड कायद आज़म वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। गवर्नर जनरल मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंट्री, हेड की बात कर रहे हैं। एक कंट्री के जो एक स्टेट का जो हेड होता है उसको हम गवर्नर जनरल कहते हैं। कायद आज़म 11 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले सेशन यानी फर्स्ट मीटिंग में असेंबली के प्रेसिडेंट मुंतखब हुए और इसके 3 दिन के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने कानून साज असेंबली यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के से इजलास किया और 14th अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और कायद आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मुंतखब हुए। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट through which land was divided between India and Pakistan. The division was not constitutional,
but based on political decisions and in the favor of India and Congress. This was the end of part 10 reading and explanation. We will do the next part in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.